पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। बोलो এই যে মানে বিষয়টি এই কথাটা গোটা দেশবাসীর পাকিস্তান মুর্দাবাদ হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ এই স্লোগান তুলছে গোটা দেশ। हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत माता की जय हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता की जय ভারত মাতা কি जय ভারত মাতা কি जय। এই জায়গাটি হলো জম্মুর রিহারি। দেখতে পাচ্ছেন যে ধ্বংসস্তূপের ছবি, এই ছবি দেখলেই স্পষ্ট এই আজ সকালে এখানেই পাকিস্তান বলা ভালো পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে পাক সেনার পাঠানো ড্রোন এখানে ভেঙে পড়ে। যে ড্রোন থেকে অ্যাটাক করতে চেয়েছিল তারা ভারতের ওপর, কিন্তু ভারতীয় বায়ুসেনার যে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সেই এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয় সেই ড্রোনটি এসে পড়ে এই এলাকায়, এই বাড়ির উপরে। আমরা চারিদিকে মানে যা অবস্থা দেখতে পাচ্ছি সেই ছবি দেখলেই আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন সেই ঘটনার অভিঘাত কতখানি ছিল। বাড়ির একটি অংশ কার্যত ভেঙে পড়েছে, ধুলির সাথে পরিণত হয়েছে বাড়ি। শুধু এই বাড়িটিই নয়, সেই ঘটনার রেশ আশেপাশে স্পষ্ট। বা ভেঙে পড়া পাঁচিল পড়ে গেছিল, বা বাড়ির সামনে পার্ক করে রাখা গাড়িতে, রাস্তাঘাটে পড়ে রয়েছে ইট পাঁচিলের সেই ধ্বংসাবশেষ। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কাঁচ। সেই ড্রোন থেকে উড়ে যাওয়া স্প্লিন্টারের ক্ষত চারিদিকে স্পষ্ট। सुबह में सोए हुए थे, एकदम आवाज आई, ठा करे पटाखे की। बच्चे ऊपर थे तो कमरे में, तो जब आवाज आई तो वो फटाफट उन्होंने तो पता नहीं कहाँ पर फेंक दिया। जो देखा तो खुला लेंटर जो मोटी का था वो टूट गया। कितने बजे की बात है ये? वो 5:45, 5:30, 6:45 बजे। जरा हमें अंदर भी दिखाइए क्या हो रखा है अंदर। अंदर ये पूरी আমরা দেখাবো বাড়ির ভিতরের এখন কি অবস্থা। মানে জি पता भी तब लगा जब शीशे टूटे तो, আচ্ছা, तब पता लगा ये हो गया। চারিদিকে যেখানেই নজর যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাড়ির ভিতরে কাঁচ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে, ধুলো বালি, মানে যা অবস্থা। আমরা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি বাড়ির অবস্থা। বাড়ির মানে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বাড়িটি। আমরা কথা বলার চেষ্টা করব বাড়ির অন্যদের সঙ্গে। मम्मा पापा और दीदी यहाँ थे गैलरी में, फिर जब सायरन बजा ना तब अंदर चले गए। पापा पता नहीं बाथरूम में थे, मम्मा लेट गए थे बेड पे, तो एकदम से ना बाहर से पता अब इतनी जोर की आवाज आई, ठल की, कान पूरे सुन हो गए। फिर गेट खोला, एक बार गेट जाम हो गया पूरा, सारी खिड़कियों के शीशे ऐसे उड़ गए एकदम से। डर लग रहा था बहुत। हाँ, पूरा बेड ना शेक हो गया, घर ही शेक हो गया पूरा। तो फिर आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 4th। अभी स्कूल बंद है। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग चल रहा है, डर नहीं लग रहा? डर तो लगेगा ही। আমরা দেখাবো ঘরের ভিতরের অবস্থা। ঘরের ভিতরে মানে এই ঠিক আমরা এখন যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছি এখানেই মূলত পড়েছিল সেই ড্রোনটি, এবং যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গোটা বাড়ি। যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন কাঁচ, জানলার কাঁচ বলে আর কোনো কিছু নেই। খেলা ব্যাট বল, ঘরের যাবতীয় সরঞ্জাম ধুলো পরিণত হয়েছে। বাড়ির ওপরটি দেখানোর অনুরোধ করব। বাড়ির ওপরে যে পাঁচিল, সেই পাঁচিল মানে ভেঙে এখন মাটিতে। গোটা এলাকায় এখন আশেপাশের থেকে এই ঘটনার খবর পেয়ে চলে এসছেন অন্যান্য প্রতিবেশী পড়োশিরাও। যেমনটা দেখা যাচ্ছে আশেপাশে চারিদিকে এই ঘটনার ছাপ এখনো স্পষ্ট। আমরা বাইরে বেরিয়ে কথা বলে নেব স্থানীয় অন্যান্য পড়শিদের সঙ্গেও। গোটা বাড়িটি মানে কার্যত ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে বাড়ির একটি অংশ। মানে সাধারণ জনজীবন মানে তখন স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী, মানে এই বাড়ির মালিকদের কথা অনুযায়ী সকাল তখন 6টা, সবাই তখন ঘুমে, হঠাৎ কানে আসে সাইরেন, তারপরেই এই অবস্থা। আমরা দেখাবো আশেপাশের কি ছবি, সেই ছবি দেখলেই বোঝা যাবে। আমরা কথা বলে নেব অন্যান্য কিছু
প্রতিবেশীদের সঙ্গেও, যেমনটা আমাদেরকে একজন বলছিলেন যে তার বাড়িতেও এই ঘটনার রেশে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে তার বাড়ি। আমরা একটু কথা বলবো তার সঙ্গে। যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন উৎসুক মানুষের ভিড় জমেছে এখানে, যে কি হয়েছে দেখার চেষ্টা, সাক্ষী থাকতে তারাও পৌঁছে গিয়েছেন এখানে। আমরা কথা বলবো স্থানীয়দের সঙ্গে। मैडम आप यही रहते हो? जी क्या नाम है? रूपाली कपूर। जब ये हादसा हुआ तब आप लोग क्या कर रहे थे? तब हम सो रहे थे तो एकदम ब्लास्ट हुआ, हमें सुनना भी बंद हो गया, तो एकदम धुआं हमारे कमरे में जैसे आग होती है ना, ऐसे आ गया। तो ये जो यहाँ पे जो धमाका हुआ तो उसका इफेक्ट आपके घर पे भी कुछ पड़ा है? ये देखो ना, যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি বিউটি পার্লার। সেই বিস্ফোরণের অভিঘাত এখানে এসেও পৌঁছিয়েছে, ভেঙে গিয়েছে কাঁচ। আমরা যেটা শুনতে পাচ্ছি এদের বাড়ির ওপরেও বেশ কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। আমরা সেই ক্ষয়ক্ষতির ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমরা ওপরে যাওয়ার চেষ্টা করব কি হয়েছে তা একটু দেখার জন্যে। सर जब ये हुआ उस टाइम कोई सायरन वगैरह या ऐसा कुछ बजा था? सायरन बचा था लेकिन हम सोए हुए थे, हमें पता नहीं चला। বাড়ির মালিক যা বললেন, যাতে ঘরের ভিতর ধুলো হয়েছিল, কিছুক্ষণ আগেই তারা বাসযোগ্য করে তোলার জন্য সেগুলিকে সাফ সাফাই করেছেন। यहाँ पे लोकल अथॉरिटी से कोई आया था, पुलिस से या प्रशासन से कोई आके? आए थे, थोड़ी देर के लिए आए थे, बाद में तो मिले नहीं हमें। अच्छा, उन्होंने कुछ बोल के गए आप लोगों को? नहीं कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो अभी सर ये जो माहौल है देश में, पूरी देश में जंग का माहौल है, हर कोई बोल रहा है कि चलो जंग हो जाए। हमारा तो कहना है कि इंडियन फोर्स को डबल तरीके से अपना अटैक करना चाहिए, खाली दो ड्रोन मारने से कुछ नहीं होगा, इंडिया को भी अटैक करना चाहिए ताकि उनमें भी पैनिक का माहौल बने, अंदर घुस के मारना चाहिए। सर आपका उम्र कितना हो गया होगा? मतलब यहाँ पे तो जैसे हम लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरिया में जो होता है जम्मू को सेफ बिल्कुल मांगते थे, लेकिन अब थोड़ा पैनिक हो गया। आप पैनिक कर, अब तो हमें डर ही लग रहा है इस घर में सोए या नहीं सोए या कहीं चले जाए। हाँ ये माहौल हो गया। तो अभी मतलब सुबह का जो टाइम था सभी बोल रहे कि सब सोए हुए थे। हाँ, तो मतलब आप लोग दो ही थे यहाँ पे? नहीं, दो बच्चे भी हैं। ये देखो ना, मिट्टी पूरी हमने अभी साफ की है, पूरे घर पे मिट्टी हो गई है। एक मतलब छोटे बच्चे हैं हमारे, देखो कोई 6 साल का, कोई 7 साल का। एक जो ऐसा मुद्दा आ रहा है सामने सर कि हमारे ऊपर 22 तारीख को पहलगाम में अटैक हुआ, फिर हम लोगों ने जो उन लोगों को जवाब दिया वो हम लोग उनके जो आतंकी घाटियां है वहां पे अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान से अटैक आ रहा है सिविलियंस के ऊपर। तो इंडिया को भी अटैक करना चाहिए ना, इंडियन उनके एयरपोर्ट पर अटैक करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनके सिविलियन है, हम भी तो सिविलियन है, वो भी तो अटैक कर रहे हैं वहाँ पर, उनको भी अटैक करना चाहिए। लेकिन मतलब आप ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे पाकिस्तान से कि जो आपको करना है जंग के मैदान में कीजिए, सिविलियंस को नहीं? बिल्कुल सर, उनको ऐसा ही करना चाहिए। भी ये ना हमें जनता को तंग कर रहे हैं, अगर वो हमारा गलत तरीके से हमें ना जनता को तंग कर रहे हैं। हमें डर लग रहा है अब हम इधर रहें या कहाँ जाए, घर तो हमारा यही है ना, तो हम इधर सेफ ही नहीं है। हमने सुबह का कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, बस कभी इधर कभी देख रहे, कभी अभी हम देख ही रहे थे तो हमारे सामने एक और आ गए थे, मिसाइल आई हुई थी। हाँ जी, देखते देखते कोई 7-8 बजे के এই জায়গাতেই আজ সকালবেলায় হঠাৎ করে ভেঙে পড়ে একটি ড্রোন, ক্ষতিগ্রস্ত হয় এলাকা। এই আমার ঠিক পেছনে যে জায়গাটি দেখা যাচ্ছে, এখানেই আজ সকালে হয়ে গিয়েছে সেই ড্রোন, ভেঙে পড়ে ড্রোন। লাগাতার গত কয়েকদিন ধরে যেভাবে একের পর এক পাক মিসাইল ড্রোন উড়ে এসছে, সেই তারই একটি এখানে প্রমাণ স্পষ্ট। যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এই বাড়ির টিন দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে, পরে এক জায়গায় মানে ঘরের ভেতরে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব স্প্লিন্টারের দাগ, স্প্লিন্টারের ক্ষত বিভিন্ন জায়গাতে ফুটো হয়ে গিয়েছে, গর্ত হয়ে গিয়েছে। এটি আপাত দৃষ্টিতে দেখে যা মনে হচ্ছে এটি এই জায়গাটি পরিত্যক্ত, সেই কারণেই হতাহতের দুর্ঘটনা কিছু ঘটেনি। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রিক্সা, ভ্যান সেগুলি দুমড়ে মুচড়ে পড়ে রয়েছে। গোটা এলাকায় মানে যে ব্লাস্ট হয়, যে তার অভিঘাত স্পষ্ট, তার ছাপ এখন পড়ে রয়েছে, গুনিয়ে রয়েছে
গোটা এলাকাটি গাছ গাছ ভেঙে দুমড়ে পড়ে রয়েছে। আমরা কথা বলার চেষ্টা করব স্থানীয়দের সঙ্গে, জানার চেষ্টা করব কখন এই ঘটনা ঘটে, কিভাবে এই ঘটনা ঘটে, তারা কি জানেন এই সম্পর্কে। सुबह कोई 6 बजे के करीब हुआ, 6:30 के करीब हुआ। हम तब डर गए थे नीचे, क्या मतलब हमने आवाज सुनी ऐसे कि जैसे कि ब्लास्ट हुआ। हम बाहर निकले, हमने बाहर देखा आकर, जब जहाँ पहुंचे मंदिर में मत्था टेकने के लिए हम जाते रहते सुबह आते जाते, तो हम जैसे हमने निकले यहाँ देखा तो ये ब्लास्ट हुआ हुआ। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, ये हम इंडिया के तरफ से वहाँ उस पर जो अटैक्स हो रहा है, ये हो रहा है आतंकी घाटियों पे, वो लोग कर रहे हैं हमारे यहाँ पे सिविलियंस के ऊपर, हमारे मंदिरों पे, गुरुद्वारा पे। ये क्या बोलेंगे आप, ये कैसी कायरता है? सर ये तो बड़ी वो है, गलत बात कर रहे हैं। देखो ना, हम तो ऐसी जगह पे कर नहीं रहे हैं उनकी, ठीक है ना। हमने अगर ऐसी जगह पे किया हो फिर बात होती है। हमने तो जो मतलब कि मिलिटेंट है उनके कैंपों के ऊपर अटैक किया, वो तो देखो ना कहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों के घर पे अटैक कर रहे हैं, तो ये थोड़ी ना करना चाहिए। जिनके साथ फाइट करने का दम है उनके साथ करो, आर्मी वालों के साथ करो, उनके साथ क्यों नहीं कर रहे हो? उनके साथ उनमें दम नहीं है करने का। उनकी हमेशा यही रहा कि सिविलियन को मारो, तो हमारा तो वो नहीं है। हम तो यहाँ पर इंडिया जो वाले हैं, हम तो पूरा करते हैं उनके आर्मी जो इंस्टॉलेशन वगैरह है, लेकिन उनका ये है कि सिविल को मारो। अब यहाँ पे रे मंदिर है, आप शंभू मंदिर है, तो यहाँ पर भी उन्होंने रिलीजियस प्लेस को कर दिया है बंद किया हुआ है, इसलिए कोई ताकि यहाँ पर अफरा तफरी रहे। उनका तो यही एक मेन है, लेकिन यहाँ के लोग सब सुलझे हुए हैं और हम चाहते हैं कि आर पार की इस वक्त। हम अगर मिलिटेंट्स को ख़त्म करना चाहते हैं, पर ये मिलिटेंट को बढ़ावा देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको मतलब कि ये कहते हैं शहीद हो गए, ये तो कायर लोग हैं। ये तो मिलिटेंट तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान को तो ऐसा करना चाहिए, हिंदुस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए, आर पार होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं, हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, हमें भी गन दीजिए, हम भी बॉर्डर पे लड़ेंगे। যেমনটা শুনতে পাচ্ছেন যে মানে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে গিয়েছে যে মানুষ বলছেন আর সেনা নয়, এবার অস্ত্র আমাদের হাতে দিন, আমরা যাব যুদ্ধক্ষেত্রে। মানে এই যে মানুষের মনের কথা এখান থেকেই স্পষ্ট যে পাকিস্তানের প্রতি কতটা বিরক্তি জন্মিয়েছে, কতটা ঘৃণা রাগ জন্মিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ऐसा है, हम सुबह सोए थे उस वक्त, मेरा घर जहाँ से 100 मीटर दूर है, तो अब बहुत बड़ी आवाज आई। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया जहाँ पर, तो जब आगे पीछे देखा तो लोग आस्ते आस्ते इकट्ठे हो गए जहाँ पर। तो बाकी पाकिस्तान को तो सबक सिखाना जरूरी है, पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, ये हम सबका मांग है। लेकिन ये काम जिनको करना है भारत सरकार से आपकी क्या दरखास्त रहेगी या क्या अपील रहेगी? सरकार पूरे जोर से पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, बिल्कुल कतई नहीं इसको बख्शना चाहिए, क्योंकि कभी वो श्रीनगर में अटैक करता है, कभी वो जम्मू में अटैक करता है, जहां उसको मौका मिलता है वहीं पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसको सबक सिखाना तो जरूरी है ना। कितनी बार बर्दाश्त करेंगे हम, इंडिया कितनी बार बर्दाश्त करेगा? हम पिछले दिन रजौरी में थे, पुंछ में थे, वहाँ पे हमने देखा कि गुरुद्वारा को ध्वस्त कर दिया गया है। एक मदरसा पे भी हो चुका है, उनका टीचर, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई धर्म बाद छोड़ा जा रहा है, हर कोई धर्म, हर कोई हिंदुस्तानियों के ऊपर अटैक हो रहा है। नहीं, ऐसा है, किसी भी धर्म पे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म तो ये सिखाता ही नहीं है किसी को कि हम ये काम करें। अगर वो धर्म पे ऐसा करेंगे, मुझे लगता है उससे ज्यादा ना समझी किसी भी देश में नहीं है। धर्म पे कभी अटैक नहीं करना चाहिए, धर्म सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। জম্মু শহরের অন্যতম মানে তীর্থস্থলের হচ্ছে একটি হচ্ছে এই আপ শম্ভু মন্দির। প্রায় প্রতিদিনই বেশ কিছু স্থানীয় মানুষ, তার সঙ্গে বাইরে থেকে আসা পর্যটক, তারাও দর্শন করতে আসেন এই মন্দিরে। সকালের দিকে যখন এই ঘটনা ঘটে তখন খুব মানে কপাল ভালো থাকায় বরাত জোর যে সেই সময় এখানে বেশি ভিড় ছিল না, সেই कारणে पाकिस्तान के तरफ से लगातार कायरता के तरह सिविलियंस के ऊपर, धर्मस्थलों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। लेकिन हम वो नहीं कर रहे, हम उनके आतंकी घाटी पे अटैक कर रहे हैं, ये उल्टा कर रहे हैं कि आम इंसान को मार रहे हैं। ये तो सर बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स की बातें, हम आम पब्लिक को तो इस चीज की उतनी जानकारी नहीं होती है, पर जो हमारी नजरों के सामने हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी ये गिरा हुआ है, कुछ कोटवाल में गिरा है, बड़े स्थानों पे गिरा हुआ है। अब ये सरकार क्या करती है आगे, तो ये सरकार ही निर्णय लेगा इसका, तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। बात ये सर, हमारे हिंदुस्तान में आम आदमियों को इतनी ये किस लिए वो कर रहे हैं, उनको करना फोर्स के साथ करें। ये आम देखो इतना डर खौफ है, किस लिए है? हम हमारी ये आर्मी है जो भी आतंकवादियों के खिलाफ कर रही है, ये आम आदमियों को तंग क्यों कर रहे हैं? गलत है ये। पाकिस्तान को खत्म करना है, खत्म ही करो। और क्या बचा? कायरता है उनकी, जी कायरता है।
अगर हिंदुस्तान कर रहा है तो वो बिल्कुल मिलिटेंट के ग्रुपों पर, उनके कंपों पर कर रहा है। तो आतंकवादियों का आज तक यही रहा है, सिविल बंदों को मारना। उनके अंदर इतना अगर हो तो हिंदुस्तान इंडियन आर्मी के साथ क्यों नहीं लड़ते? नहीं लड़ सकते क्योंकि उनके अंदर तड़ी नहीं है। हमारे अंदर है, हम मार रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं जहां तक हम ले सकते हैं। मोदी जी एकदम सही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, सारा सही हो रहा है, जो हो रहा है होने दो। सर अभी जो देश का हालात है, अभी आपके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं अपनी इंडियन आर्मी को कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लीजिए कि आम आदमियों को हमें कोई आर्मी को जो करना है वो तो करेगी, कर रहे हैं। लेकिन अभी एक जो मुद्दा है, अभी जो देश का हालात है, अगर जरूरत पड़े तो आम आदमी के हिसाब से आप भी आर्मी के साथ हाथ मिलाएंगे? हम हमारी जान की ना देनी पड़े, हम वहाँ पे खड़े हैं। भारत माता की, हम लास्ट तक इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं। हम यही बोल रहे हैं, जितना अंदर घुस सकते हैं हम उतना अंदर घुस के मारेंगे, इतनी तड़ी हमारे अंदर है। हम जय श्री राम बोलने वाले बंदे, हम मुंह उठा के अटैक करेंगे, पीठ नहीं दिखाते हम। हमने आज तक कभी पीठ नहीं दिखाई। जब भी आतंकवादी घुसा है अंदर, पीठ पीछे ही अटैक करा है। कांड भाई हमारी आर्मी के ऊपर अटैक होता है, पूंछ आप देख सकते हो, रात को अटैक हुआ है, रात को लोगों के ऊपर ऐसे वो उनके अंदर अगर तड़ी होती तो वो सामने से आके अटैक कर सकते हैं। बॉर्डर खोले ना, क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि उनके नहीं है। चीन उनका साथ दे रहा है, चीन की खुद लगी पड़ी है कि मोदी कब अटैक करेगा, मोदी कहां से अंदर घुस के मारेगा। सबका ये हो रखा है। अगर हम भारत माता की जय बोल के अंदर घुस सकते हैं, जय श्री राम की जय बोल के भी नारा मार के अंदर घुसेंगे। हमारे अंदर कोई खौफ नहीं है, ना हम डरेंगे, ना हम डरते आए हैं। इसलिए हम यही बोल रहे हैं, जितना अंदर हम घुसेंगे, पीओके लेने की बात अगर हमारे अंदर है, हम पीओके अंदर भी लेके घुसेंगे। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा चलता है टूरिज्म के ऊपर। ये जो पिछले 1 महीने से हालात चल रहा है, टूरिस्ट आने से डर रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट जम्मू कश्मीर के इकोनॉमी? बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है इसके वजह से। कश्मीर जाएगा ही नहीं, कौन जाएगा? डर के कोई निकलेगा ही नहीं घूमने। बहुत ज्यादा इन्होंने पूरा कुछ सुन के मारा है, हिंदू मुस्लिम करके मारा है। अगर इनके अंदर ये था, अगर हमारे आदमी निहत्ते थे ना तभी उनको मार पाए हैं। अगर अभी ये बोलेंगे कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा, अगर कश्मीरी हमारे साथ है ना, तो अगर वहाँ पे 28 हमारे लोग मारेंगे ना, 400 बंदा वहाँ पे था। मैं बोलता हूँ 400 बंदा 4 बंदों को नहीं पकड़ सकता। अगर वहाँ पे एक मिलिटेंट गन छीनने का, एक सिविल बंदा गन छीनने का दम रखता है, 400 बंदा भी 4 बंदों की मारने का दम रखता है। ये मैं बोलता हूँ। अगर कल्ले भी टकरेंगे तो भी मार सकता है हिंदू। हिंदू पीछे चुप, हिंदू काफी टाइम से चुप रहा है, अब हिंदू चुप नहीं रहेगा। हिंदू जब भी अटैक हुआ है, हिंदू मुस्लिम इसलिए क्यों जा रहा है? क्योंकि भाईचारा नहीं होता। हर जगह आप लोग बोलो नहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ठीक है भाईचारा। मेरे भी दोस्त मुस्लिम है, हमने आज तक कभी ये नहीं करा कि भाईचारा ये है वो है। ये जो मिलिटेंट है ये कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हिंदू मुस्लिम भाई नहीं है। जो मिलिटेंट है वो मिलिटेंट है, वो किसी का धर्म का नहीं है। उसको ये मत बोलो कि वो मुसलमान है तो वो उनका कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादियों का आज तक कोई धर्म नहीं आया है और ना ही ये होगा। ये जो अगर बोल रहे हैं कि ये धर्म है भाईचारा, ये भाईचारा नहीं होता कि तुम नत्थे को गोलियां मार के खत्म कर दो। वो बेचारे वहाँ पे घूमने गए हमारे हिंदू भाई, हिंदू भाइयों को मारने का अगर तुम लोग दम रखते हो, हम भी रखते हैं। फिर अगर नत्थे वो थे, अब हम नत्थे नहीं रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, हर जगह ভাইচারা মত চালাও। বিষয়টা যেটা এখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে ভারতীয় সেনার সঙ্গে প্রয়োজনে তারাও নেমে পড়বেন যুদ্ধের ময়দানে, এই বার্তাই দিচ্ছে জম্মু, এই বার্তাই দিচ্ছে গোটা দেশ। সংবাদ প্রতিদিন .in এর জন্য ক্যামেরায় শুভ্ররূপের সঙ্গে সোমনাথ রায়, জম্মু।